Hello everyone, I hope you're doing great. Would like to welcome you all to the platform of IS Vision. Well, you all know UPSC Prelims 2026 is over, and it was one of the paper which was not at all easy for you to tackle, because not just the kind of the topics they had asked, but even the kind of questions, the way they were actually framed, that was also very much on a tougher side, no doubt about that. Having said that, now I already have done the analysis of the history part, and having said that, now economy is also a very important portion, so we have to do a basic analysis of that as well. So if we see economy portion, we had roughly 16 questions from this particular portion, but a few questions were from the current affair side as well. So we can say around 13 questions were hardcore economic questions, and these are the questions which I'm going to be talking about in this very short and brief session. Do let me know in the comment section if you have any doubts related to that, and do subscribe to the channel अगर आप first time इस channel पर आए हैं तो channel को subscribe करना मत भूलें. So without further ado, let's start this very session. And let me tell you one thing, in this very session, it is not just about question answers. I'm also going to be giving you an idea that how are you supposed to approach this. आपकी जो approach है, that is also something which is very much important, and we are going to be focusing on that portion as well, that what has to be your approach in these kind of papers. Because this time I'll tell you what I personally feel is that most of the students have also faced this issue, that how do we approach certain questions, because some questions are really tough, you won't be finding in any standard course book, and इसलिए भी मुश्किल आई है because उनको पता नहीं चल रहा कि कैसे हमने उसको पढ़ना. So we'll talk about that as well. So having said that, let's start with the first one. Now very first question is about the Sagarmala. Now at the very outset everybody will say कि अरे Sagarmala तो आसान है, सबने पढ़ा होता है Sagarmala. But let me tell you one thing, कि this question is not that easy. Why do I say that? Now let's read this question. It says Sagarmala program seeks to achieve port-led economic growth. Success of Sagarmala is reflected in significant growth of the coastal inland waterways. And then Sagarmala 2.0 global maritime hub बनाना चाहता है. ठीक है. Now the beauty is when you read these three statements in the examination under pressure, then you realize कि अरे ये तो question ही नहीं है. Question क्या है? Question यहाँ पर start हुआ है. Which of the following relationship is correct? Now realize this point कि question अभी start ही यहाँ पर हो रहा है. So you got to understand कि statement 2 validates the effectiveness of the strategies envisioned in statement 1. Very important. Clear हुआ? So अब statement 2 validate कर रही है कि नहीं, एक बार देखते हैं कि success of Sagarmala is reflected in significant growth. ठीक है, सागरमाला अचीव करना चाहते हैं, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं. देन सेकंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट 3 सागरमाला 2.0 तो 2.0 तो एक्सटेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है. स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 3. अब आप एक चीज बताओ, क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? द आंसर इज नो. ये तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं. गेटिंग इट? Because Sagarmala 2.0 is about a next phase of Sagarmala. So you got to understand, we can't say this particular thing. So that's why here B is going to be the right answer. B यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है. We move to the next one. अब ये आजकल बहुत चल रहा है, ई-कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है. इसमें क्या है? सेलर हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस बट डज नॉट कीप दैट स्टॉक. वो क्या है, ऑर्डर लेता है और कहीं से भेज देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप शिपिंग. नाउ इफ यू हैव रेड बेसिक इकोनॉमी, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस टर्म, या सुना होगा आपने इसके बारे में. ड्रॉप शिपिंग एग्जिस्ट करता है, और आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे बहुत चल भी रहा है. ठीक है, पीपल क्लिक, पीपल ऑर्डर, एंड देन दैट इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स. So that is drop shipping. So ये काफी करंट अफेयर में भी था, तो that's how they have asked. Now we talk about this particular index, that is fiscal inclusion index. Now when we talk about this one, अब ये क्या है proper, ये तो question मतलब I would rather say is a very basic question, and we have to understand one simple and clear forward thing कि इसमें आपको पता होना चाहिए था कि कौन कौन से indices हैं. If you are aware of that particular thing, then you are going to be in a position to answer that in a specific format. ठीक है जी. सो इसमें क्या होता है? एक्सेस है, यूसेज है, क्वालिटी है. अब कल को यूपीएससी एक स्टेप और आगे जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? यूसेज. सो यूसेज को 45% ये लोग टैकल करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, 20% क्वालिटी को, एंड देन 35% इज फॉर द एक्सेस, कि भाई कितना एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का. तो ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. अगेन वाजंट न्यूज, सो यू वर सपोज टू नो दैट, बट वही बात है कि एग्जाम में कई बार नहीं याद रहता. लेकिन आप ये देखोगे फाइनेंशियल लिटरेसी,
जैसे इसमें दिया है इंश्योरेंस डेप्ट, तो ये काफी क्लोज ऑप्शंस थे, बट एनीवे सी इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्लियर. मूविंग अहेड, वी टॉक अबाउट ओएनडीसी इनिशिएटिव. अब आप एक चीज माइंड में रखना यहाँ पे, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव फॉर दैट मैटर, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ओएनडीसी है क्या, व्हाट इन द फर्स्ट प्लेस इज ओएनडीसी ऑल अबाउट. पहले तो हम इस चीज को समझते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओएनडीसी, अब ओएनडीसी में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो क्या है, दैट इज अबाउट इंटर ऑपरेबिलिटी. ये आप याद रखना. सो दिस इज वाई, मतलब फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट वी कैन सर्टनली आंसर दिस क्वेश्चन कि टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर. देन वी टॉक अबाउट नॉट करेक्ट का पूछा है इसने, यूपीआई और सीबीडीसी का. ठीक है जी. अब आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम. ठीक है, डिजिटल रुपी इज सोवरेन पेपर करेंसी. बिल्कुल सही बात है, सोवरेन टू पेपर करेंसी. इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर द एंड यूजर हैपन इंस्टेंटली. डिजिटल रुपी हैज नो ट्रेडिशनल सेटलमेंट. बिल्कुल सही बात है. यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक्स. डिजिटल ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर है. बिल्कुल सही बात है, वॉलेट में. अब अगर आपको ये पता है, लास्ट स्टेट में पढ़ोगे, यूपीआई डिजिटल रुपी फाइनेंशियल लायबिलिटी इज विद रिस्पेक्टिव कमर्शियल बैंक. अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. वाई? बिकॉज यहाँ पे यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव थिंग कि यूपीआई में तो चलो बैंक से पैसे कट गए, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट डिजिटल रुपी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसके पास है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे लाइबिलिटी जो है इट इज गोइंग टू रेस्ट विद द आरबीआई. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि सीबीडीसी में अल्टीमेटली डायरेक्ट लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई रहेगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. Directly with the RBI. So that is why D is going to be the right answer to this question. Easy. Moving to the next one. अब यहाँ पे क्या रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात है, टोकनाइजेशन के. तो इसमें क्या था, टोकनाइजेशन है क्या कि टर्निंग फिजिकल या इनटेंजिबल रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, 24/7 यहाँ पे जेंडर, ये जो ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बिल्कुल सही बात है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम बाहर भी एसेट्स को अटेन कर सकते हैं इसके थ्रू. बिल्कुल सच बात है. सो यहाँ पे वी कैन से दैट ए ऑल दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर. मूविंग अहेड, अब यह बॉन्ड का ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. क्वेश्चन है कि जो इन्वायरमेंटल सोशल प्रोजेक्ट्स को एक साथ ले आए. ग्रीन बॉन्ड सिर्फ इन्वायरमेंट से जुड़ा है, सोशल बॉन्ड सिर्फ सोशल प्रोजेक्ट से जुड़ा है. तो अब सवाल है सोवरेन बॉन्ड क्या है, ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है. नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड, सिंस द क्वेश्चन क्लियरली सेज कि हमें दोनों चीजें चाहिए, एनवायरमेंट और सोशल प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गो विद सी. अब हो सकता है आपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को नहीं पढ़ा पेपर से पहले, देयर इज अ हाई चांस. बट सिंस यू नो कि भाई इन्वायरमेंटल अगर दिया होता तो ग्रीन बॉन्ड होता, सोशल अगर दिया होता सोसाइटी से रिलेटेड होता, तो यहाँ पे व्हाट कैन बी द राइट आंसर, वो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, दैट यू शुड नो हाउ डू यू आंसर सच पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज आई नो दिस क्वेश्चन इज टफ, बट फिर वही बात है कि आप कैसे उसको आंसर कर रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था. मूविंग अहेड, वी टॉक अबाउट टीआरईडीएस. अब टीआरईडीएस की हम लोग बात करते हैं. अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखना, टीआरईडीएस में से क्या इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि इट प्रोवाइड कोलेट्रल बेस्ड लोन. आप याद रखना हमेशा, कोलेट्रल फ्री लोन्स जो हैं वही मिलते हैं, तभी तो उसका फायदा होगा. कोलेट्रल बेस्ड लोन्स तो कहीं से भी ले लोगे, फायदा तो तभी है ना जब कोलेट्रल फ्री लोन्स मिलेंगे. नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट इज कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको कहीं ना कहीं बहुत डीप जाके पूछा हुआ. अभी देखो, M1 एक्सचेंज इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. अब देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का तो पॉइंट ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इकरा है, क्रिसिल है, केयर है, स्मेरा है, वो सब है, तो ये तो नहीं होगा. सो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर डेफिनेटली विल बी डिस्काउंटिंग इनवॉइसेस बिल ऑफ एक्सचेंज. ये बिल्कुल सही बात है. सो आई विल गो विद 2 ओनली एज द राइट आंसर, बाकी दोनों करेक्ट नहीं है. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है, एक होता है क्राउडिंग इन, एक होता है क्राउडिंग आउट. अब आप याद रखो, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये है क्राउडिंग इन, तो ये तो आंसर नहीं होगा. क्राउडिंग आउट पूछा है. सिचुएशन वे द गवर्नमेंट बोरोइंग लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट, ये होगा. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गो विद बी एज द राइट आंसर. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड पे तो नहीं मैं बोलूंगा, पर क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू टेस्ट. क्राउड फंडिंग की हम लोग बात करते हैं. अब आप यहाँ ध्यान रखना, भाई क्राउड फंडिंग बेसिकली है क्या. व्हेन वी टॉक अबाउट द क्राउड फंडिंग, अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग दैट क्राउड फंडिंग जो है वो टर्म निकल कर आती है कि क्राउड फंड कर रही है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर क्राउड फंडिंग कर रहे हैं. ठीक है. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ द फंड, बहुत सारे इन्वेस्टर दे रहे हैं, बिल्कुल सच बात है.
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर एबल टू रेज द फंड, बिल्कुल। और रिगरस, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिगरस प्रोसीजर्स इसमें नहीं फॉलो होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। इट वॉज ए न्यूज एज वेल। सो सी इज द राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है। अब यहाँ पे इसने क्या करा, देखो कमेटी दे दी, ऑब्जेक्टिव दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अंडर दे दिया इस कमेटी। अब आप एक चीज नोटिस करना, मैं जब बात करता हूँ सिंपल सी बात है, अगर आपको रफ आइडिया है, IRDAI की हम लोग बात करते हैं। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर है, 1999 में बनी है, क्लियर है। अब आप एक चीज नोटिस करना, व्हेन वी टॉक अबाउट द RN मल्होत्रा कमेटी, RN मल्होत्रा कमेटी तो आई थिंक 1990s की, 1992 या 3 की है। अब आप देखो यहाँ पे इसके तहत तो IRDAI नहीं बन रहा ना, दैट इज द रीजन वाई वी कैन से दैट ये कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं होगा। सो ये बहुत बेसिक सी चीज है, नो डाउट इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा है, लेकिन आप ये देखो कि इनको 93 94 में सारी रिकमेंडेशन आ गई हैं, गेटिंग द पॉइंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये जो पॉइंट है, मतलब इस तरह से इस पर्टिकुलर चीज को हमने देखना था, क्योंकि बहुत डिफरेंस है, क्लियर। हालांकि मतलब इसने ये बोला, मतलब जरूर है कि ये बनना चाहिए, तो आप ये माइंड में रख के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अंडर, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, IRDAI बनी बाद में, RN मल्होत्रा कमेटी पहले है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सही नहीं हो सकता। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है टोटली क्या हो जाती है यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाती, फ्लॉड हो जाती। ये चीज आपने यहाँ पर फोकस करनी थी, मतलब दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैड टू फोकस अपॉन। वन स्टेटमेंट गई है, अब आप थर्ड स्टेटमेंट भी देखते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मतलब एनी स्टेटमेंट फॉर दैट मैटर, थर्ड स्टेटमेंट में क्या, उर्जित पटेल कमेटी बनी है। ये क्यों बनी है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए बनी है। इसमें हाउसिंग सेक्टर का तो कुछ भी नहीं था, उर्जित पटेल ने बोला, तो ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या हो गया, मतलब 3 भी यहाँ पे उड़ गया, तो 3 उड़ा है, तो या तो 2 ओनली होगा या 2 and 4 होगा, तो 4 सही है, ठीक है, RBI के तहत ही बनी, तो इसलिए हेयर डी इज गोना बी द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ वी टॉक अबाउट NBFCs। अब आप एक चीज नोटिस करना, व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट NBFCs, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो ये है कि दे कैनॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये सही है, डिमांड डिपॉजिट ही नहीं, कासा जो होता है करंट अकाउंट सेविंग, ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ऑल NBFCs आर अंडर RBI। अब आप ये माइंड में रखो, सारी तो नहीं है, कुछ हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रही है, कुछ हो सकता है IRDAI देख रही है, कुछ सेबी भी देख सकती है, तो यहाँ जहाँ ऑल आ गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, ये इनकरेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी। अब या तो आंसर 1-4 है या फिर आंसर 4 ओनली है, सिंपल सी बात है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वन स्टेटमेंट सही है, तो अगर वन स्टेटमेंट सही है तो 4 ओनली तो हो नहीं सकता आंसर, तो इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली ए आ गया, बट स्टिल फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी, तो यू गॉट टू आंसर, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए ए इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, वी टॉक अबाउट MPI। अब MPI में ये दो स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ना। नीति आयोग का जो MPI है, इट हैज गॉट हाउ मेनी इंडिकेटर्स, इट हैज गॉट 12 इंडिकेटर्स, दैट इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग, राइट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने मैटरनल हेल्थ और जो बैंक अकाउंट वाला है वो इंडिया में ऐड किया, ग्लोबल वाले में नहीं है, जो UNDP है उसमें नहीं है। तो मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर, सर्टनली नॉट, ये कॉमन इंडिकेटर नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गई। एंड वी नो कि ये अकीरे फॉस्टर मेथोडोलॉजी बिल्कुल लगती है इसमें, सो ऑफ कोर्स ए इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगेन, अब ये MPA वाले में इसने इसको टफ कैसे बनाया, अकीरे जो एल्कीरे फॉस्टर मेथोडोलॉजी वो लगा दिया, तो उससे टफ बन गया। हर क्वेश्चन को टफ बनाने की थोड़ी कोशिश है, जैसे ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी वाला भी जो है ना, ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो लास्ट क्वेश्चन में थी वो भी थोड़ा टफ बना रही है इसको, बट अगेन आई वुड से दैट एक होलिस्टिक रीडिंग अगर आपकी है, यू आर गोइंग टू बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन प्रिसाइसली, तो उसमें इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द पॉइंट इज। So that's it from my side. I hope you have enjoyed the session. You have gained something from the session. बहुत मैंने brief रखने की इसको कोशिश करी है, so that you can have a decent level of clarity on each and everything. So that's me Akashindeep signing off. Do subscribe to the channel अगर आप first time यहाँ पे आए हैं, and stay tuned for further updates related to prelims and mains examination of UPSC Civil Services exam. Thank you so very much. Have a nice day.